Okay, Assalamu alaikum, everybody. I think we have waited 5 minutes more. So let's start the session. Uh, Let me start with the vision of Google Developers Student Club. It's all about helping students bridge the gap between theory and practices. So students needs to find out the solution for the problem of our local society, and students are basically the enabler. Every innovative idea in the world mostly or usually comes from the students. So this is the vision of our society. So this society is for the student to solve our local society problems. Okay, and throughout this semester, we will be having multiple sessions of mobile application workshops, boot camps for the students, and a series of webinars and workshops that will be announced, inshallah, usually every week. And most important thing about this uh, webinar is that you need to sign the attendance sheet that I'll be floating on the Google Meet chat time to time during the workshop. And after this workshop, you will be receiving an email about feedback. So kindly send the email uh, about the quality of the workshop after you have completed your workshop. Okay. After 2 or 3 days, I will send an email for the feedback. Right. Ezan, आप इधर हैं? Yes, sir. ठीक है. अच्छा. अब्दुल सनी साहब, ऐजान जो हैं वो हमारे MNP लीड हैं और बेसिकली इन्हीं के बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी. तो हमें आपके साथ जो है वो ऐजान को जो है थोड़ा सा हेल्प आउट करना होगा, जो भी इनकी क्वेरीज है. मतलब छोटा सा हमें सेशन और चाहिए होगा. तो हम जी हम फिर वर्कशॉप के बाद फिर किसी टाइम पे मैं आपकी इनसे फिर जो है वो मीटअप करवा दूंगा. ठीक है. बिल्कुल. And students, let me introduce Mr. Abdul Sami. He has industry experience of almost 8+ years, and he is working in Teams Venture as a senior software SEO specialist. And I also request Mr. Abdul Sami to kindly introduce himself and start the session, please. All right. Assalamu alaikum, guys. Let me introduce myself. This is Abdul Sami. I have more than 8 years experience in the field of search engine optimization. So basically SEO stands for search engine optimization. And I'm currently working at Team Ventures organization and have successfully ranked many websites on Google. तो जो बड़ी वेबसाइट्स हैं और इंटरनेशनली और लोकली फेमस हैं उनके लिए मैंने काम किया हुआ है. तो जैसे सुपरफिट हो गई, टिम्बरलैंड हो गई, और आपने कॉन्वर्स शूज़ का नाम सुना होगा. तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, अगर वो उनको वेबसाइट रैंक करानी होती है गूगल पे, सो दे अप्रोच अस, हमारी कंपनी को अप्रोच करते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं. सो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ इज़ अ ब्रांच. ठीक है, उसकी एक ब्रांच है डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ. जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, यूट्यूब मार्केटिंग हो गई, एसईओ भी इसी तरह एक ब्रांच है जो कि काफ़ी बड़ी है. ठीक है, तो उसी हवाले से ये हमने वर्कशॉप रखा है और उस हवाले से जो है मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई यू शुड गो फॉर SEO एंड चूज योर करियर, राइट. सो आई थिंक शुड वी स्टार्ट एंड अब्दुल जी काइंडली आप इसको स्टार्ट करें. मैं आई शुड स्टॉप प्रेजेंटिंग. Okay. So we have around 20 participants in, right? Yes, these participants will increase, inshallah, but we are also, as we are recording this session, so this recording will also be available, inshallah. At the moment, I haven't started recording, but yes, है तो आप recording कर दें online. जी recording हो रही है. Okay, sure. Okay. Okay, so I have shared a presentation. Okay. ठीक है, इंट्रोडक्शन तो हो गया मेरा. So basically the today's topic is why choose SEO as your career. तो SEO को करियर अपना कहने के लिए
आप स्टार्ट करते हैं। की टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का पहले भी था इतना बूम, लेकिन आफ्टर कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा इसका बूम आया है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंडिंग करना स्टार्ट कर दी है, काफ़ी बड़ी कंपनीज ने। तो दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनीज एंड एसईओ इंडस्ट्री पे अभी पहले इतना उसका नहीं था, लोग पेड मार्केटिंग पे कर रहे थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कर रहे थे। व्हेन दे केम टू नो अबाउट दिस की एसईओ इंडस्ट्री में हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में उसका आरओआई आता है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं कि आज की एसईओ में, तो $80 बिलियन की जो एसईओ की वर्थ है वो डिजिटल मार्केटिंग में है, इंटरनेट में। इंट्रोडक्शन, देन वी विल टॉकिंग अबाउट how Google and other search engines work and types of SEO. Then we will be doing practically keyword research, and then we will talking about what is the white hat SEO and black hat SEO. के बाद Google tools होते हैं जो हम यूज करते हैं after we index our websites in search engines, and how we can analyze and make decisions based on the performance of the websites. और गेट स्टार्टेड विद एसईओ एक्टिविटीज़ जो मैं ऑफिस में पर्सनली काम करता हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, जो मतलब प्रैक्टिकली अगर यूट्यूब पे सीखते भी हैं। तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि इन केस अगर आप इंटर्नशिप ले रहे हैं और आपको एज अ कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग रख रहा है एसईओ के लिए, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि पहला स्टेप कौन सा होता है ऑफ पेज, उसके हिसाब से आप ऑफिशियल वर्क कर पाएँ। ठीक है, या पर्सनल वेबसाइट पे, या अगर आपको कहीं ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं एज एन इंटर्न और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और एसईओ एज ए करियर, तो इसमें जॉब्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आप हो सकते हैं और फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं आप। उसके बाद जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंफर्म में, स्क्रीन शेयर हो गई नजर आ रही है? क्या होगी? ओके, सो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, ये 2018 की रिपोर्ट है कि बाय 2020 और 21 SEO इंडस्ट्री अप्रोचिंग $80 बिलियन। बट सब लोगों को ट्रैफिक ही चाहिए, तो इस हेडिंग का मकसद ये था कि काफ़ी कंपनीज जो है पेड मार्केटिंग पे जो खर्चा कर रही थी, दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट दे वरंट गिविंग एनी केयर अबाउट कि भाई हमें एसईओ पे कुछ फोकस करनी चाहिए। दे वरंट अवेयर अबाउट एसईओ। ठीक है, तो फोर्ब्स ने इस आर्टिकल पब्लिश किया कि एसईओ इज अ थिंग, आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप डिजिटल मार्केटिंग में पेड मार्केटिंग अगर कर रहे हैं, तो पेड मार्केटिंग में अगर आप गूगल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, या यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप इसी फील्ड को भी, एसईओ फील्ड को भी मर्ज कर दें साथ में, ताकि आपको वेबसाइट की ट्रैफिक और ज़्यादा मिल सके, एंड देन यू कैन कन्वर्ट दोज कस्टमर्स जो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल की लिंक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, अगर मैं सिंपल एक आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में बताऊं कि ऑर्गेनिक और पेड रिजल्ट में फ़र्क क्या होता है, तो अगर आप मोबाइल खरीदने का सोच रहे हैं, जैसे आईफोन हो गया, या यहाँ पे जैसे कीवर्ड मैंने दिया हुआ है बाय मोटो G4 प्लस। ठीक है, तो ये कीवर्ड यहाँ पे आपको शॉपिंग फीड्स दिखेगी सब पहले, उसके बाद यहाँ पे गूगल एड्स दिखेगा, जो कि मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये पेड एडवर्टाइजमेंट होती है यूजिंग एडवर्ड्स। ठीक है, इसमें पैसे देने पड़ते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, पूरी एक कॉपी बनानी पड़ती है, हेडिंग और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है गूगल एडवर्ड्स की, वो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिसर्च में क्या होता है, आपको पहले पूरी एफर्ट देनी पड़ती है, जो कि 3 से 6 महीने की होती है किसी भी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लिक्स फ्री में मिलते हैं जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं। अगर कोई भी क्लिक करता है तो वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स उनको, वेबसाइट्स वालों को, अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट होगी या आप किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, अगर आप उनके लिए एसईओ करेंगे, तो ये जो कीवर्ड्स हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स वाले, ये वाले, तो आप इनके लिए फ्री क्लिक्स लाएंगे, जो कि इंफॉर्मेशन बंदा ढूंढ रहे। एसईओ इज ऑल अबाउट इंटेंट। ठीक है, अगर बाय मोटो G4 प्लस अगर किसी ने लिखा है, तो इट मीन्स उसका इंटेंट ये है कि वो मोबाइल खरीदना चाह रहा है इसी स्पेसिफिक मॉडल की। और अगर मैं एडवर्टाइजर हूँ और मेरी अगर पर्सनल वेबसाइट है, अगर बिजनेस की कोई, तो मैं अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, तो आई विल बी पेइंग गूगल। ठीक है, मैं गूगल को पे करूंगा, गूगल मेरी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो कराएगा, और अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो गूगल उस पैसों से पर क्लिक मेरे पैसे काटता है। सपोज इफ आई एम
एडवर्टाइजिंग दिस प्रोडक्ट इन अमेरिका, तो पर क्लिक मुझे $2 $2.5 देने पड़ेंगे। पाकिस्तान में ये हो गया अराउंड $450। क्यों? क्योंकि अगर मैं क्लिक लाता हूँ और मेरी प्रोडक्ट अच्छी है और मैं बिल्कुल कस्टमर को वही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी और ये प्रोडक्ट आपको खरीदनी चाहिए, तो वो मेरा आरओआई हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिसर्च में ये होता है कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ मुझे एसईओ एफर्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी पूरी, जो कि टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, ओके, इंट्रोडक्शन करते हैं एसईओ का कि एसईओ होती क्या है और क्यों करनी चाहिए हमें, एंड व्हाई डज इट टेक टाइम। तो ठीक है, a highly data-driven methodology of strategy and techniques used to increase the amount of visitors to a website by obtaining a high ranking placement in the search results page serve, ठीक है, including Google, Bing, Yahoo and other search engines, जो कि Yandex हो गई रशिया की, Baidu हो गई इसकी चाइना की। तो आपको कुछ टैक्सेस होती हैं, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और वो अप्लाई करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू गिवन गूगल सर्च इंजन गाइडलाइंस, या जो भी बिंग होगी तो बिंग की गाइडलाइंस के मुताबिक वो आपको टैक्स अप्लाई करनी पड़ती है वेबसाइट्स पे। उस अप्लाई करने के बाद आप रैंकिंग इंप्रूव कर पाते हो। जैसे ही आप टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करते जाते हो, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। तो आपको दरअसल वो ऐसे में फैक्टर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, 70% of the links clicked on by search users are actually organic। आप खुद भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो ज़्यादातर आप पेड एडवर्टाइजमेंट को, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, मैं पेड एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के वहीं पे ऑर्गेनिक रिसर्च पे ज़्यादा जाता हूँ। टॉप 3 पे या टॉप 5 पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मैं कहीं फर्दर कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो उस पे टॉप 10 पे क्लिक करके टैब्स अलग से खोल के फिर मैं पढ़ता हूँ, एंड देन आई गेट बैक टू रिसर्च फर्दर। अगर मुझे कोई आईफोन लेनी होती है पाकिस्तान में तो मैं ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। जैसे अगर आप बाय आईफोन लिखें या ऑनलाइन शॉपिंग लिखें तो यू विल नोटिस कि दराज पेड एडवर्टाइजमेंट भी चला होता है और ऑर्गेनिक पे भी दराज पहले नंबर पे है। इट मींस दराज ने दोनों चीज़ें जो है ना कवर की हुई हैं। मार्केटिंग वगैरह यूट्यूब भी कर रहा है, लेकिन एसईओ पे भी ऑनलाइन शॉपिंग में आ रहा होगा। तो टेलीमार्ट ऑनलाइन शॉपिंग पे आ रही होगी या दराज आ रही होगी, तो वो सारे क्लिक्स दराज के पास जा रहे होंगे। अगर दराज पहले या टॉप 3 में रैंक कर रहा होगा या कोई दूसरी, तो 70% क्लिक्स उनके पास जा रहे हैं। सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन की ऑफिशियल जो है वो ब्लॉग है एक, तो वहाँ पे सारी सर्च इंजन की जो है न्यूज़ पब्लिश होती है। ओके, वन एंड ओनली मार्केटिंग एक्टिविटी वेयर यूजर्स शो इंटेंट। मैंने पहले भी बताया कि इंटेंट मैटर करता है यहाँ पे। आप कोई रिसर्च करें हाउ टू मेक कॉफ़ी, ठीक है, वो आपका इंटेंट हो गया। आप इंफॉर्मेशनल चाह रहे हैं, आप कोई आईफोन खरीदना चाह रहे हैं या कोई कंप्यूटर गेमिंग पीसी खरीदना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू टाइप बेस्ट गेमिंग पीसी, ठीक है, तो आपका ये इंटेंट होता है कि भाई मुझे बेस्ट गेमिंग पीसी चाहिए या मुझे आईफोन चाहिए, बाय आईफोन ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो ठीक है, इंटेंट आप शो कर रहे हैं गूगल पे। अच्छा, अब्दुल समी साहब, आप काइंडली कंफर्म करें आप कौन सी स्लाइड पे हैं? इट्स अराउंड, एक मिनट, इंट्रोडक्शन टू एसईओ नंबर 6। नंबर 6। अच्छा जी, ये स्लाइड आपकी शायद फ्रीज हो गई है, 3 नजर आ रही थी ना? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट आई एम रेफरिंग टू, तो मैं वही पे हूँ अभी। ठीक है ठीक है, ये अभी अभी अपडेट हो गया है ना? हाँ, तो थोड़ा वो, हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। ओके। तो बिजनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके 89% ऑफ कस्टमर्स बिगिन देयर बाइंग प्रोसेस विद द सर्च इंजन। तो अभी कोविड में काफ़ी बूम आया था तो हमने भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, तो काफ़ी कस्टमर्स अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में उनके जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं ज़रूरत की, वो ऑनलाइन ही बाय कर रहे होते हैं। और काफ़ी जो एंटरप्राइजेज़ हैं वो अभी एसईओ पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की इस फील्ड में वो चाह रही है कि भाई हम एसईओ को भी ना अब मर्ज कर दें ताकि हमें ये भी ट्रैफिक आए, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स का इंटेंट वहाँ पे ही होता है। ठीक है, तो एसईओ टेक्स टाइम, स्लो प्रोसेस होता है। आपको 3 से 6 महीने अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी और वेबसाइट जो आप टारगेट कर रहे हैं मार्केट को, उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है और इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होता। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, आपको डिग इन करना पड़ता है कि क्या चीज़ लैग कर रही है जो मुझे कंप्लीट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एसईओ फैक्टर्स।
अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस। और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि अगर आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपने वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ ओवर ऑप्टिमाइज़ कर दी है, तो गूगल आपको आपकी वेबसाइट को देखेगा और आपको वार्निंग देगा कि भाई ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपकी टॉप 10 में रैंक वेबसाइट कर रही होगी, तो आपको कहेगा कि हम आपको बैन कर देंगे या पेनलाइज़ कर देंगे। और इसमें एफर्ट होती है, ऑप्टिमाइजेशंस होती है, ठीक है? और इसमें मल्टीपल स्किल्स होती हैं। आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, एनालिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कंप्यूटर साइंस से रख रहे हैं तो आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स की नॉलेज ऑलरेडी होगी। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। ओके, हाउ गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स वर्क। ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, वो एक बिल्ड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, डेवलपमेंट फेज से निकल के आपको उस वेबसाइट को लाइव करना है। तो जब आप लाइव करते हैं, अगर वो आपका पर्सनल ब्लॉग होगा, तो वो जब आप लाइव करेंगे तो वो पर्सनल ब्लॉग आपको गूगल पे इंडेक्स कराना होता है, जिसके लिए टूल्स होते हैं, जिसके लिए मैं आगे जाके बात करूंगा। तो वंस दिस वेबसाइट गेट्स इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन स्पाइडर स्क्रॉल, तो पहले आपकी वेबसाइट आ गई, वो लाइव हो गई। उसके बाद लाइव होने के बाद गूगल का एक स्पाइडर स्क्रॉल होता है जो पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनको क्रॉल करता रहता है। उसमें आपका रोबोट टेक्स्ट होता है, उसमें अगर आप अलाउ करते हैं तभी आपको करते हैं। जब लाइव लॉन्च करने का मकसद ये होता है कि आप पब्लिकली उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? तो गूगल को पता चलता है कि भाई नई वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो वो एवरी टाइम एवरी सेकंड नई इंफॉर्मेशन क्रॉल करता रहता है, ठीक है? तो वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आपके वेबसाइट पे आके सेकंड फेज है ये स्पाइडर स्क्रॉल का। तो वो आपकी वेबसाइट को पढ़ता है कि वेबसाइट किस हवाले से है, क्या इसमें चीज़ें हैं, और फिर वो उसको अपने पास इंडेक्स कर लेता है उस रिलेवेंट कैटेगरीज में। अगर वो वेबसाइट होटल्स की होगी तो वो होटल्स की कैटेगरी में उसको अपने पास इंडेक्स कर देगा, ठीक है? अगर वो आपकी पर्सनल ब्लॉग पे जैसे कोई इंफॉर्मेशनल होगी, अगर हाउ टू डाउनलोड फाइलज़िला, ठीक है? तो फाइलज़िला के हिसाब से तो आपको वो बताएगा कि ये वेबसाइट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दी वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस या वेबसाइट माइग्रेशन प्रोसेस, तो वो उस कैटेगरी में उसको अपने पास रख देगा। तो नेक्स्ट जी, टाइम आपकी ना स्लाइड नंबर 6 पे बच्चे कह रहे हैं कि वो नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? आपकी स्लाइड नंबर 6 नजर आ रही है अभी। आई थिंक देन इंटरनेट विल बी। अब सही हो गया, ठीक है। तो आप इसको चलिए ना, मैं एक काम करूँ, मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट, हाँ शायद चलिए, रिजॉल्व हो ठीक। जाए। अब 7 आ रहा है नजर। ओके, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। 1 मिनट, मैं दोबारा इसको जो ना रिप्रेजेंट करता हूँ, प्रेजेंट नाउ योर एंटायर फुल स्क्रीन। ओके, ठीक है। अब स्लाइड सही आ रही है? हाउ गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स वर्क वही आ रही है? कंफर्म कर दीजिएगा। जी, अब ये नजर आ रही है, ठीक है। ओके, तो वो उस कैटेगरीज के हिसाब से इंडस्ट्री वाइज वो क्या अपने आप पास इंडेक्स कर देते हैं क्रॉलर जो है। और व्हेन नेक्स्ट टाइम यूजर्स searches it and it matches the topic of your content and your website will rank on number 1 SERP, search engine result page. SERP stands for search engine result page, ठीक है? तो आपकी वेबसाइट की अब नंबर रैंक उस नंबर 1 पे या टॉप 10 रिजल्ट्स में लाने के लिए आपको इन एसईओ से गुजरना पड़ता है, जो टाइप्स ऑफ एसईओ होती है। तो टाइप्स ऑफ एसईओ में ऑन पेज एसईओ आ जाता है, जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो which is also known as on-page SEO refers to all measures that can be taken directly within the website in order to improve its position in the search engines, ठीक है? तो ये ऑन पेज के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर होते हैं, जो आपको फिल आउट करने पड़ते हैं, जैसे टाइटल टैग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या कंटेंट लिख रहे हैं तो उस कंटेंट में आपको कीवर्ड्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, तो ये ऑन पेज एसईओ में आते हैं। ऑफ पेज एसईओ में आते हैं कि आप आउटसाइड अपनी वेबसाइट पे जो अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर रहे होते हो, कहीं जैसे डिजिटल पीआर इज अ पार्ट ऑफ पेज एसईओ। तो अगर आप डिजिटल पीआर में अगर के आप कहीं कंट्रीब्यूटर होंगे, तो आप उस हवाले से कोई टॉपिक अगर रिलेवेंट होगी आपकी वेबसाइट, तो आप उस हवाले उससे रिलेवेंट टॉपिक लिखेंगे एंड देन यू विल बी लिंकिंग अ वेबसाइट
promoting your ones. ठीक है, तो आगे जाके मैं फैक्टर्स बता दूँ ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसमें, ऑन पेज में कौन से होते हैं, ऑफ पेज में कौन से होते हैं. ओके, सो मेन फैक्टर्स जो होते हैं टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट ऑप्टिमाइज्ड विद कीवर्ड. तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं, टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो हैविंग एन ऑप्टिमाइज्ड टाइटल फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बिकॉज सर्च इंजन रीड द टाइटल ऑफ योर प्रोडक्ट पेज टू गिव इट अ बूस्ट. तो जब आप टाइटल टैग में बताते हो कि ये टॉपिक है, तो जब बोट आता है, क्रॉलर आता है, तो वो उस टाइटल टैग को पढ़ता है. बाद में जाके आपको मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है. थर्ड पे जाके वो आपके क्रॉलर पूरी वेबसाइट को पढ़ता है जाके कि टाइटल टैग में इसने कीवर्ड कवर कर लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन में इसने कीवर्ड कवर कर लिया जो ही द गाय इज ट्राइंग टू रैंक. And then what he sees कि why should I give a preference to rank this website only, because there are thousands of other persons who are already talking about this specific topic. ठीक है, तो आप ही को प्रेफरेंस क्यों मिलनी चाहिए. तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज द की, कंटेंट इज किंग in and content and SEO goes both with in terms of ranking. तो आपको कंटेंट उस हिसाब से लिखना पड़ेगा. और अगर आपका कोई टॉपिक है, पर्सनल वेबसाइट होगी या क्लाइंट की वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहा कि टिम्बरलैंड हो गया या सुपरफीड की मैंने वेबसाइट पे काम किया हुआ है. तो सुपरफीड की वेबसाइट पे मैंने जो काम किया हुआ है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, वो मैं थोड़ा इसको कवर कर लें पहले. ओके, सो अदर फैक्टर्स भी हैं जो आपको ऑन पेज जैसे में करने पड़ते हैं. कि आपको कीवर्ड्स जो आपने अगर टारगेट किया होगा, आपका मेन कीवर्ड हो गया फॉर एग्जांपल शूज शॉपिंग ऑनलाइन इन पाकिस्तान, तो उसमें आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 5 में रिलेवेंसी लानी पड़ेगी. एंड यू नीड टू एजुकेट द बोट और गूगल सर्च इंजन टू लेट देम गिव अ प्रेफरेंस टू गिव यू अ बूस्ट इन रैंकिंग. ठीक है, और फिर आपको होम पेज पे कंटेंट करना पड़ेगा या अदर पेजेस यू आर ट्राइंग टू रैंक, आपको उसी पे जो ऑन पेज जो है फैक्टर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं. आपको ब्लॉग पब्लिश करते रहना चाहिए ताकि वो फ्रेशनेस हो और गूगल क्रॉलर को पता चले कि दिस गाय इज रियली सीरियस अबाउट हिज ब्लॉग. अगर आप ही सीरियस नहीं होंगे तो आपको गूगल सर्च इंजन क्यों सीरियस लेगा इस हवाले से. या कंपनी वो जो कंपनी होगी बस वेबसाइट लॉन्च कर दी और ठीक है 1 महीने में ब्लॉग अपडेट कर लिया या थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली, तो गूगल उसी हिसाब से उनको जो ना फिर क्रॉल करता रहता है. हफ्ते में क्रॉल कर लिया, जब अपडेट आती है गूगल के पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस वेबसाइट पे अपडेट हुई, देन क्रॉल कम्स एंड फिर उस हिसाब से वो रैंकिंग करता है. तो अगर आप उस हिसाब से हफ्ते में या 1 हफ्ते में 2 ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट. ऑल टैग इमेज होती है गूगल इमेजेस में. अक्सर आप अगर कोई इमेज फाइंड करते हैं तो ऑल टैग इमेज वी ट्राई टू एजुकेट गूगल के व्हाट दिस इमेज इज ऑल अबाउट, ये इमेज क्या है और किस हवाले से है, ताकि वो गूगल इमेजेस में उसको रैंक कर सके. तो गूगल इमेजेस से भी आपको ट्रैफिक आ सकता है. एक तो हो गया वो गूगल ऑर्गेनिकली, फिर वो इमेजेस वाली ट्रैफिक भी ला सकते हैं. LSI कीवर्ड्स यूजेज वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे जाके. LSI कीवर्ड्स जैसे रिलेवेंट कीवर्ड्स और सिनोनिम्स कीवर्ड्स, जो आपने अगर टॉप 10 में अगर आपने मेन कीवर्ड टाइप किया होगा, अगर आपने नोट किया होगा कि नेविगेशन के बाद गूगल से पहले कुछ सजेशंस आती हैं, वो LSI कीवर्ड्स कहलाते हैं. आपको सोशल बटन्स आपकी वेबसाइट पे जरूर होने चाहिए ताकि सोशल शेयर्स हों जो कि रैंकिंग में हेल्प करते हैं. ओके, तो एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप व्यू, तो ये वेबसाइट है जिस पे मैंने काम किया हुआ है क्लाइंट के लिए. तो मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड टाइटल टैग, जो कि लिखा हुआ है सुपरफीट ऑनलाइन ब्रांडेड शूज शॉपिंग इन पाकिस्तान, और यहाँ पे URL आ रहा है सुपरफीट का, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है. अगर आप नोट करें तो मैंने इसमें ब्रांडेड शूज टाइटल टैग में भी कवर किया हुआ है और ब्रांडेड शूज मैंने यहाँ पे भी कवर किया हुआ है. तो 2 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, तो इस वजह से मैं अभी आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस वेबसाइट अराउंड 3 to 4 months ago, and now we are ranking and competing with the brands like Hush Puppies and सर्विस की हो गई या एंड्रॉयड शूज हो गए, इनकी सोलोटो हो गई, तो इनके साथ कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 फैक्टर्स अभी कंप्लीट किए थे, उसके बाद मैंने जो है कंटेंट में वो चीज़ें की थी. तो अभी इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई टाइटल टैग इफ यू आर वेब डेवलपर. तो लेट्स फाइंड
इनकॉग्निटो में ट्राई कर लेते हैं google.com.pk पे, एंड आप अगर ब्रांडेड शूज लिखेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग सुपरफिट ऑन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल टैग में सुपरफिट आ गया, ऑनलाइन ब्रांडेड शूज एंड मेटा स्ट्रीम में आ गया। तो मैंने ये फैक्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं और लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो ये वेबसाइट डेवलपर ने वेबसाइट बनाई, देन वी कोलैबोरेटेड एंड एसईओ फैक्टर्स जो कंप्लीट करने थे वो किए हमने। और यहाँ पे मैंने उसको कंटेंट का भी बोल दिया कि भाई जो आपको कंटेंट है वो यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम जो कॉम्पिटिटर्स कंटेंट होम पेज पे नहीं दे रहे तो हम इस फैक्टर में आगे निकल जाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंटेंट पब्लिश किया और कंटेंट की वजह से हमने विद इन 2 to 3 months काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटर ये चीज़ नहीं कर रहे थे और ये हमें प्लस पॉइंट मिल गया। तो हमने कॉम्पिटिटर को वहाँ पे बीट कर दिया, आउट रैंक कर दिया, और हमने ये चीज़ फिल करके गूगल को एल्गोरिथम को फर्दर अपनी वेबसाइट की वजह से एजुकेट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे हेडिंग 2, ये हेडिंग 1 है। H1 में आपको रिलेवेंट कीवर्ड आपको टारगेट करना चाहिए, जो कि मैंने किया हुआ है। ब्रांडेड फुटवियर हो गया, ब्रांडेड शूज एंड ब्रांडेड फुटवियर साउंड सिमिलर। ठीक है, ओके, तो उसके बाद जहाँ पे मैंने दूसरा हेडिंग 2 में कीवर्ड कवर कर लिया, देन हेडिंग 2 में मैंने बाय शूज ऑनलाइन इन पाकिस्तान कर लिया, जो कि ये सेकंड मेरा कीवर्ड है। काफ़ी लोग बाय शूज ऑनलाइन करते हैं, काफ़ी ब्रांडेड शूज करते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये कीवर्ड अराउंड आई थिंक नंबर 11 पे रैंक कर रहा होगा, जो कि अभी मेरा काम चल रहा है नंबर 13 पे, नंबर 14 पे। ओके, तो इस पे मुझे और काम करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये भी रैंक हो जाएगा विद इन। तो कॉन्वर्स शूज़ है, इनको मैंने इंटरनल लिंक किया हुआ है। ब्रांड को अगर वोट यहाँ पे आता है तो मैं उसको इंटरनल लिंक करके बताता हूँ कि ये इसी ब्रांड से रिलेटेड हैं। ठीक है, और कंट्रोल यू करके इंस्पेक्ट व्यू सोर्स पेज, आप यहाँ पे मेटा नेम आई थिंक, ओके, तो मेटा डिस्क्रिप्शन आगे फाइंड आउट वाइड रेंज ऑफ फुटवेयर कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन ब्रांडेड शूज, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो दिस इज बिल्ट इन ऑन शॉपिफाई, शॉपिफाई पे है, तो शॉपिफाई पे आपको कोडिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप शॉपिफाई पे कस्टमाइजेशन हो जाती है तब तक जब तक आप डेवलपर हैं या कस्टम थीम नहीं बना रहे। तो यहाँ पे टाइटल टैग हो गया, जो कि सर्च इंजन वही रैंक वही जो है सर्प में दे रहा है जो मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है। अगर आप नोट करें तो हमने जो क्लिक किया था, तो यही है पाक सुपरफिट पाक ऑनलाइन ब्रांडेड शूज इन पाकिस्तान, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, ओके, हाउ डिड आई रैंक दिस वेबसाइट? तो ऑन पेज एसईओ के जो फैक्टर्स हैं मैंने वो कंप्लीट कर दिए थे, और मैंने आपको यहाँ तक बता भी चुका। ये हेडिंग टूल्स में मैंने कीवर्ड कवर कर लिए, फिर इमेज ऑल्ट भी कर ली, जो कि मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो ऑफ पेज एसईओ में जो हैं फैक्टर्स हैं वो हैं ये कि लिंक एक्वाजिशन स्टिल मैटर। आपके जो सर्च इंजन है वो ज़्यादातर लिंक्स पे फोकस करती है, वो लिंक्स देख के अपने आप को एजुकेट करती है। देन हार्नेस द पावर ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए वो लिंक्स को पढ़ती है, और लिंक्स को पढ़ने के बाद वो टाइटल टैग पे जाती है मेटा, फिर अपने आप को एजुकेट करके उस हिसाब से वो फैक्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं आपकी वेबसाइट के। तो ये ऑफ पेज फैक्टर में आपकी अगर वेबसाइट है, ऑन पेज एसईओ तो कर लिया आपने, ठीक है, ऑन पेज एसईओ में सिर्फ आप ही अपने टॉपिक को जानते हैं, बोर्ड को फर्दर वोट चाहिए होते हैं लिंक में कि आपको दूसरे लोग जानते हैं। सपोज इफ योर वेबसाइट इज अराउंड सुपरफिट, और कोई भी अगर आप ब्रांड का नाम ले लें, तो उन लोगों ने ज़्यादा ब्रांड पे फोकस किया हुआ था, तो गूगल कहता है कि व्हाई शुड आई रैंक यू। ठीक है, आपने ऑन पेज एसईओ कर ली, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग का ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, तो गूगल वालों ने अपना सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, अगर भाई 10,000 लोग एक ही वेबसाइट पे टॉपिक पे काम करें तो बोर्ड ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। भाई मैं ऑन पेज तो सब कर रहे हैं, कौन से बंदे को रैंकिंग कर रहा हूँ, रैंक सब डिजर्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो गूगल ने ऑफ पेज एसईओ का ज़्यादा फोकस कर लिया कि भाई जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी क्वालिटी वाली लिंक्स होंगी मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। सपोज इफ यू गेट अ लिंक फ्रॉम प्रो पाकिस्तानी, which is referring to your website, that link is that link will be really boosting your website। क्योंकि आप प्रो पाकिस्तान से लिंक रहे हैं which is already famous। ठीक है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे आपको आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए अपनी वेबसाइट की, आप सोशल पोस्टिंग करते रहें, अपनी सोशल मीडिया की ऑडियंस बनाएं।
ठीक है, फॉरम पोस्टिंग हो गया। फॉरम पोस्टिंग अगर आप गेट लैब हो गया या इसी तरह अगर आपकी कोई वेबसाइट है, मैं फ्रॉम एसईओ पर्सपेक्टिव अगर बात करूँ, अगर मेरी वेबसाइट है एसईओ के हवाले से और मैं एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ तो ऑनलाइन, तो मुझे एसईओ के फॉर्म से जाके पोस्टिंग करनी होती है ताकि वो रिलेवेंस से बिल्ड हो। गूगल देखेगा ये एसईओ का ही बंदा है जो एसईओ पे जाके अपनी लिंकिंग कर रहा है और पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो पार्टिसिपेशन की वजह से मुझे थोड़ा बहुत बूस्ट मिल जाता है जो कि फ्री होता है। फॉरम पोस्टिंग हो गई, गेस्ट पोस्टिंग फ्री भी होता है, पेड भी होता है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनकी अगर अथॉरिटी अच्छी होती है, फेमस होती है, वो पेमेंट आपसे मांगती है, और काफ़ी जो वेबसाइट्स होती हैं जिनकी अथॉरिटी अभी बिल्ड हो रही होती है, तो वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट करें और आप उनसे जो है ना उनको कंटेंट लिख के दें और फिर आप उनको ये गेस्ट पोस्टिंग की फिर आपको रेफरिंग लिंक मिल जाए ताकि आपकी लिंक से ज़्यादा वो अथॉरिटी बढ़े इन साइट ऑफ गूगल सर्च इंजन। ट्रस्ट बिल्ड करना होता है आपको थोड़ा बहुत अपनी कम्युनिटी में। ब्लॉग कमेंटिंग होती है। ब्लॉग कमेंटिंग, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और आपको इन्फॉर्मेशन लगा, आपने रिलेवेंसी में बिल्ड करने के लिए वहाँ पे कमेंट भी कर दिया और वहाँ पे अपनी लिंक भी प्लेस कर दी। वेब 2.0 होती हैं जैसे ब्लॉग स्पॉट हो गया, मीडियम हो गया, जिमडो हो गया, आई थिंक ये हो गए 3। तो आप इन पे जो जाके अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख के ऑफ पेज एसईओ का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना हमारे प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा बहुत ब्लॉग कर लें और प्रमोशन कर लें, क्योंकि उनकी ब्लॉग स्पॉट की, मीडियम की अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है पहले। आर्टिकल सबमिशन, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपने आर्टिकल 250 वर्ड के, 500 वर्ड के लिख के आप सबमिट करके अपनी लिंक बिल्डिंग करें ताकि आपको लिंक बूस्ट मिल सके। ओके, तो ऑफ पेज एसईओ में ये चीज़ें होती हैं, कैसे करना है यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ। वेब 2.0 को मैंने थोड़ा बता दिया यहाँ पे। तो पार्टिसिपेशन करनी होती है वेब 2.0 पे जाके, आपको वो बनाने होते हैं अपनी ब्लॉग स्पॉट लाइक योर नेम और वट एवर यू आर टारगेटिंग। गेस्ट पोस्ट का मैंने बता दिया। क्लासिफाइड सबमिशन होती हैं, जो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे OLX हो गया, OLX से आपको अलाउ नहीं करता आपकी वेबसाइट लिंक लगाने का। तो कुछ वेबसाइट्स आपको फाइंड आउट करनी पड़ती हैं जो अलाउ करती हैं लिंक भी हो और आपकी प्रमोशन भी हो जाए। तो क्लासिफाइड पे बीइंग एन एसईओ हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें लिंक मिल जाए ताकि हमें थोड़ा वेबसाइट पे बूस्ट मिल जाए सर्च में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। एक मिनट। ओके, तो उसके बाद कोरा का आपने सुना होगा। कोरा पे आप अगर पार्टिसिपेशन करें तो पार्टिसिपेशन करके आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और लोगों की हेल्प करने के बाद आप उनको कह सकते हैं कि भाई फर्दर इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन विजिट माय वेबसाइट। अगर कोई आपको सोल्यूशन चाहिए इसी हवाले से तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो कोरा इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। बिजनेस प्रोफाइल्स, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो बिजनेस प्रोफाइल्स बनाने पड़ते हैं, येलो पेजेस की तरह जैसे हो गए। लोकल साइटेशंस होती हैं जो कि गूगल को हेल्प आउट करती हैं फर्दर। और ब्रांड मेंशंस, अगर आपकी कोई क्लाइंट की ब्रांड है तो आपको अगर ब्रांड मेंशंस का है और अगर किसी मैगजीन ने आपको लिंक नहीं किया हुआ तो आप उसको आउटरीच करके आप कह सकते हैं भाई ब्रांड मेंशंस तो किया आपने, आपको इसको लिंक भी करना चाहिए। अगर कोई कस्टमर क्लिक कर रहा है आपकी मैगजीन से तो वो हमारी वेबसाइट पे रेफर हो जाए, रादर देन वो आपको पढ़े और फिर वो आके टाइप करे। तो वो टाइप करने का प्रोसेस उसके लिए इरिटेटिंग होता है कस्टमर्स के लिए। ओके, तो एसईओ का बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको पहले पता होता है कि डिमांड क्या है लोगों की, what people are searching about. So keyword research is the process of discovering words and phrases, also known as keywords, that people use in search engines like Google, Bing and YouTube. YouTube पे भी अगर कोई कोर्स सर्च कर रहा है एसईओ का कोर्स, तो उसकी भी सर्चेस गूगल अपने पास रखता है कि इतने लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी डेटा जो मैटर करती है गूगल के वो रखता है ताकि एसईओ को या पेड एडवर्टाइज को ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं इंटेंट वाइज अगर देखा जाए तो नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। तो कंफर्म करिएगा आपको अगर आवाज़ आ रही है एक्टिव। जी आ रही है। आ रही है ना, तो ठीक है। नेविगेशनल कीवर्ड्स अक्सर ऐसे होते हैं कि हमें अगर फेसबुक पे लॉगिन करना होता है तो हम एफबी लॉगिन गूगल पे लिख देते हैं तो वो गूगल आके लिंक देता है। तो उन कीवर्ड्स पे, उस लिंक पे हम क्लिक करके फिर एफबी में लॉगिन कर देते हैं या जीमेल पे लॉगिन कर देते हैं, ठीक है। तो ये नेविगेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं, जिस पे अगर हम काम करना भी चाहें तो फजूल है क्योंकि ये ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हमें आइडिया है कि नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं जो कि
वहाँ पे रैंक कर रहे हैं, तो इनको रैंक करने का फ़ायदा नहीं होता। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं कि अगर कोई बंदा है, वो हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियो, या अमेरिका में कोई ढूँढ रहा है कि फेमस बेड टाइम स्टोरीज़ टू रीड ऑनलाइन, तो वो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स कहलाते हैं, जो ब्लॉग फॉर्मेट में रैंक कर रहे होते हैं कि अगर वो उसमें क्लिक करेगा तो वो आर्टिकल की इन्फॉर्मेशनल टाइप में आ जाता है कि आपको वीडियो डाउनलोड करना है तो क्या स्टेप्स होंगे, कैसे-कैसे स्टेप्स लेने होंगे। अगर फेमस बेड टाइम स्टोरीज़ की बात है तो स्टोरीज़ आ जाएँगी वहाँ पे। ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड्स कहलाते हैं, जहाँ पे यूज़र का इंटेंट ये होता है कि वो कुछ ऑनलाइन बाय करना चाह रहा है। अब जैसे यहाँ पे बाय ब्रांडेड शूज़ है, तो यहाँ पे बाय ब्रांडेड शूज़ का ये है कि मैंने अगर काम किया हुआ है, तो मैंने इस कीवर्ड पे ट्रांज़ैक्शनल पे इंटेंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइंट को हेल्प आउट करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शूज़ ऑनलाइन बाय करना चाह रहा है कि वो उसकी वेबसाइट पे आए एसईओ से और वो परचेज़ करे हमारी वेबसाइट पे आके। तो ट्रांज़ैक्शनल, कमर्शियल एंड इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स जिन पे आपको रैंक करना चाहिए। कमर्शियल में ये होता है कि आप रिसर्च करना चाहते हैं पहले, कि जैसे बेस्ट गेमिंग पीसी हो गया, आपको अगर लेना हो, बेस्ट हेडफ़ोन्स लेना हो, तो आप पूरी एक गाइड पढ़ते हो कि कौन-कौन से बेस्ट गेमिंग पीसीज़ हैं या हेडफ़ोन्स हैं जो मुझे लेनी चाहिए। ट्रैवल कितना है अगर हेडफ़ोन्स का, हेडफ़ोन्स की टाइमिंग क्या है बैटरी की, तो आप वो सारी रिसर्च करके फिर आप जाके, अगर आपने नोट किया हो, तो आप वहीं से, अगर किसी का एफ़िलिएट लिंक लगा लगा होता है, तो आप वहीं से रिडायरेक्ट हो जाते हो शॉप पे, शॉप नाउ पे या दराज़ पे, या अगर कोई अमेरिका में बैठ के वो कर रहा है, तो वो ज़्यादातर अमेज़न पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जो कि बेस्ट हेडफ़ोन्स के हवाले से या बाय ब्रांडेड शूज़ के हवाले से। तो ये कुछ टूल्स हैं जो आपको आपका इंटरेस्ट बिल्ड करने में, एसईओ में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे। गूगल प्लानर हो गया, आई थिंक गूगल ट्रेंड्स हो गया, एंड एसईएम रश हो गया। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आई थिंक लेट्स गो टू सेमरश। तो ये सेमरश एक ऑल इन वन टूल है एसईओ का और डिजिटल मार्केटिंग का पूरा। तो अगर कोई कीवर्ड अगर हमें सर्च करना हो, आप कोई कीवर्ड बताएं या मैं कोई टाइप करता हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट हेडफोन्स। ठीक है, ओके। ये थोड़ा आप लॉग इन करके आप टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि 33,000 सर्चेस पर मंथ इन यूएस अलोन। अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली मोर देन 1 लाख पीपल आर सर्चिंग, इंडिया में, यूएसए में, यूके में। तो कीवर्ड रिसर्च पे आप अगर फोकस करना चाहें, तो यहाँ पे आपको पूरी डेटा, एसईओ करने से पहले आपको पूरी डेटा होनी चाहिए कि मुझे अगर किसी कीवर्ड पे काम करना है, तो व्हाई शुड यू गो फॉर दैट कीवर्ड। तो कीवर्ड रिसर्च आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बेस्ट हेडफोन्स देखा है, तो ये मुझे क्या इससे रिलेवेंट कीवर्ड भी बता रहे हैं, वेरिएशंस भी बता रहे हैं कि कुछ लोग बेस्ट नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स भी सर्च कर रहे हैं, वायरलेस भी, ब्लूटूथ भी, बेस्ट हेडफोन 2020 भी। तो ये अमेरिका में लोग कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में, ओके, पाकिस्तान में 880 लोग हैं जो इसको सर्च कर रहे हैं, बेस्ट हेडफोन्स को। बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स हो गया, और अगर जैसे शूज़ ऑनलाइन का हो गया, तो अगर मैं इसका कीवर्ड करना चाहूँ, तो आपको अगर ये डेटा पहले चाहिए होती है, अगर आप कोई वेबसाइट स्टार्ट भी करना चाह रहे हो, तो आपको एसईओ कीवर्ड रिसर्च लाज़मी आना चाहिए। ये लिमिटेड आपको थोड़ा बहुत देता है डेटा, क्योंकि ये पेड टूल है, और ये गूगल कीवर्ड प्लानर पे हम आते हैं, और ये मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप अकाउंट बना के इस पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आके, यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स में होगा गूगल कीवर्ड प्लानर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो सजेस्ट यानी कीवर्ड हम अगर सर्च करना चाहें, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, गेट रिजल्ट्स। ओके, ओके जी, गॉट इट। कंफर्म करिएगा अगर आपको स्क्रीन सही नज़र आ रही। जी आ रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान दिस इज़ अ कीवर्ड, और यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस बता रहा होता है कि पाकिस्तान में पर मंथ 10,000 से 1 लाख तक लोग सर्चेस कर रहे होते हैं।
तो ये कंपटीशन जो बता रहा है हाय, ये एसईओ का कंपटीशन नहीं बता रहा है, ये गूगल एडवर्ड्स पे हैं हम, तो ये बता रहा है कि इस ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान अगर कोई सर्च कर रहा है तो इस कीवर्ड को कितने एडवर्टाइजर्स जो हैं टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक की हुई है। अगर आप अपने पास सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान या कोई बाय आईफोन अगर लिखेंगे तो आपको ऐड नज़र आएगा, जो मैंने पिक्टोरियल वाली बात कही थी। तो ये कीवर्ड यहाँ से सर्च होते हैं, फिर लोग कैंपेन बनाते हैं यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स पे, कंपनीज जो होती हैं, और उस हिसाब से जो है कीवर्ड सर्च करके टारगेट कर रही होती हैं। और लाहौर की देखी जाए तो वेरिएशंस अगर आप देख लें, लाहौर में 10,000, और यहाँ पे कीवर्ड है विद कैश ऑन डिलीवरी होगा, आई थिंक फ्री फ्री होम डिलीवरी। ओके, तो ये सारे कीवर्ड इंटेंट हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि फ्री होम डिलीवरी पे फोकस कर रही है कि हम शिपिंग चार्जेस नहीं लेंगे, तो वो इस कीवर्ड को फाइंड करके टारगेट कर सकती है अपने टाइटल टैग, मेटा सेक्शन और कंटेंट में ऑन पेज फैक्टर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नाइक शूज प्राइस हो गया, तो आई थिंक यही वाला कीवर्ड अगर ऑनलाइन शूज शॉपिंग इन पाकिस्तान, तो ये वाला कीवर्ड मैंने किया हुआ था, ऑनलाइन शूज शॉपिंग इन पाकिस्तान, सुपर फिट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने टारगेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं रैंक कर रहा हूँ। मैंने दोनों चीज़ें की, ऑन पेज एसईओ भी किया हुआ है और मतलब 3 महीने के अंदर, और ऑफ पेज एसईओ भी किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं रैंक कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनी के लिए, और इन कम्पीटिंग विद दीज ब्रांड्स। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको कीवर्ड सर्च के हवाले से कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर हो गया, और लीव अ मैसेज। ओके, स्टैटिकली नहीं, आपको अगर पेज है आपका कोई भी तो आपको उसका करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, रेज हैंड अगर आ गई है तो आपको। ओके, ठीक है, तो कीवर्ड सर्च आपको करनी चाहिए, और ये टूल्स हैं। अब ट्रेंड की बात करते हैं, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स आपको बताता है कि दुनिया में 24 आवर्स में, एक मंथ में, या 12 महीने के अंदर क्या क्या ट्रेंड हो रहा था। तो अगर पाकिस्तान की कंट्री को अगर हम सर्च करें, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, फुटबॉल कंपटीशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो अर्जेंटीना में ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं, ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में, साउथ कोरिया एंड कतर में। और अगर हम इसको अपनी कंट्री तक लाएं तो हमारे पाकिस्तान कंट्री में क्या हो रहा है, लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ओके, आई थिंक पास्ट 30 डेज में, और मैं इसको वो कर देता हूँ, नॉट इन, एक मिनट। ओके, 2020 में हम देख लेते हैं। पाकिस्तान में 2020 में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टॉप सर्चेस, कोरोना वायरस, गूगल क्लासरूम, और उसके बाद मारवी सम्मत जो पीपल की कैटेगरी में आ रहा है, कोरोना वायरस की। उसके बाद इवेंट्स कौन से हो रहे थे, इवेंट्स लोग सर्च कर रहे थे। गैजेट्स, काफ़ी लोग आईफोन 12 सर्च कर रहे थे, इन्फिनिक्स एंड देन इर्तगुल, मेरे पास तो मोर मनी आई स्टैंड। ये चीज़ें हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक अगर कोई टॉपिक देखना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आईफोन पाकिस्तान में लोग कितने कितने लोग सर्च कर रहे थे, और ट्रेंड बरकरार रह रहा है 12 मंथ्स का नहीं, तो पूरे साल ये ट्रेंड बरकरार रह रहा है, लोग काफ़ी आईफोन सर्च कर ही कर रहे थे। या शूज़ शॉपिंग।
ओके, शूज शॉपिंग आई थिंक कोविड में ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रहा है। तो लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया, काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पे जाके अपनी वो ना शूज़ शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें कर ली। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग का देखें, मेन जो हमारा ब्रॉड कीवर्ड है, तो पहले तो सही चल रहा था, उसके बाद कोरोना वायरस के बाद ज़्यादा बूस्ट आ गया, 100% बूस्ट आ गया इसमें। इट मीन्स काफ़ी लोग अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग का प्रेफ़रेंस कर रहे हैं और अभी ट्रेंड थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन लोगों को आदत पड़ गई, काफ़ी लोगों को। तो इस रेशियो को आप उस हिसाब से अगर आप डेटा एनालिटिक्स करें उसकी, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो सकता है कहाँ-कहाँ पे सर्चेज़ ज़्यादा हुई हैं। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और कौन से टॉपिक्स हैं, स्टिच हो गया, सो कमाल, कौन से कीवर्ड्स हैं, ये भी आपको रिलेटेड कीवर्ड्स बता सकता है कि ये ज़्यादा जो है सर्चेज़ हुई थी। तो इस तरह से ये टूल्स आप यूज़ करके सर्चेज़ वो कर सकते हैं। ये एक फ्री टूल है जो आपको अच्छी खासी वो दे देता है। बाय आईफ़ोन 12 इन यूनाइटेड स्टेट्स अगर देख लें, तो ज़्यादा ये फ्री टूल है, आप या ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये ट्रेंडिंग बता रहा है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड आ गया, फिर ये ट्रांज़ैक्शनल कीवर्ड आ गया और इसकी वॉल्यूम बता रहा है और सीपीसी बता रहा है। अगर आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो आपको इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ओके, ओके जी। तो व्हाइट हैट एसईओ वर्सेस ब्लैक हैट एसईओ हैकिंग की तरह होता है, लेकिन जैसे एथिकल हैकिंग होती है, अनएथिकल हैकिंग होती है, इसी तरह यहाँ पे भी व्हाइट हैट एसईओ होती है और ब्लैक हैट एसईओ होती है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे होते हैं ऐसे जो अपने सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं और सॉफ्टवेयर को गाइड कर लेते हैं कि आपने ये फैक्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो वो मतलब विदाउट एनी लिमिट वो पूरा सॉफ्टवेयर काम करता रहता है, जो कि गूगल की गाइडलाइंस के खिलाफ है। गूगल कहता है नहीं भाई, आपको मेहनत करनी चाहिए, खुद प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर को गाइड ना करें। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर एक ही दिन में अगर 10 लाख 5 लाख पेजेस पब्लिश कर लेगा, तो गूगल के सारे डेटा सेंटर पे फ़र्क पड़ता है, जो कि गूगल की बजट होती है, क्रॉल बजट। ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो बोट क्रॉल कर रहा है, तो उसकी भी एक बजट होती है कि भाई इतनी मरतबा पर डे आपको क्रॉल करना होता है। तो गूगल कहता है अगर ये सॉफ्टवेयर वालों को मैं सारी क्रॉलिंग बजट दे दूँगा और रैंकिंग इनको दे दूँगा, काफ़ी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड सही से नहीं मिल पाती। काफ़ी लोग वो टॉप 10 में आके अ, इल्लीगल वेबसाइट्स रैंक कर रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रैंक नहीं करनी चाहिए, वो प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गूगल उनको पेनलाइज़ कर देता है। गूगल के भी कुछ टूल्स होते हैं जिनको गूगल को पता चल जाता है कि ये सॉफ्टवेयर चला के रैंक करना चाह रहा है। तो आपको हमेशा व्हाइट हैट एसईओ करनी चाहिए गूगल की या दूसरी सर्च इंजिन्स की गाइडलाइन फॉलो करते हुए, और आपको कंटेंट यूनिक और रिलेवेंट लिखना चाहिए। बोट में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में लोग क्या करते हैं, दूसरी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और फिर वो सॉफ्टवेयर में लगा देते हैं और पब्लिश कर देता है। और आपको कीवर्ड जो है सही तरह से यूज़ करने चाहिए व्हाइट हैट एसईओ में। बैकलिंकिंग इतनी नहीं करनी चाहिए जितनी मतलब पर डे अ, पर वीक आपको अगर 5 से 10-15 लिंक्स अगर आप कर सकते हैं तो दैट विल बी फाइन। सॉफ्टवेयर में आपको अगर 1000 ही बैकलिंक्स या 100 बैकलिंक्स आप पर डे बनाएँगे तो गूगल देखेगा कि ये सब सस्पिशियस एक्टिविटी है यहाँ पे, तो वो आपको आपकी वेबसाइट को बैन कर देगा। व्हाइट हैट एसईओ में ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है आपकी बिज़नेस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपकी वेबसाइट काफ़ी टाइम आने वाले सालों तक रैंक कर रहती है। आप अक्सर देखेंगे, आप काफ़ी टाइम से अगर करते आ रहे हैं सर्चेस प्रो पाकिस्तानी को, दराज को, या कोई भी बड़ी ब्रांड ले लें या कोई नई ब्रांड भी आ रही हो, तो वो एथिकल एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ की तरह काम कर रही होती है, जिनको आगे जाके बेनिफिट ही होता है। क्यों? क्योंकि उनका बिज़नेस ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होंगे तो वो। तो अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ और इस तरह की चीज़ें जो है, स्टफिंग, लिंकिंग, कीवर्ड जो भी हैं, काफ़ी लोग कीवर्ड स्टफिंग, वही कीवर्ड 10 मर्तबा कर लिया ताकि वो काम कर जाए, डुप्लीकेट कंटेंट, फ़ायदा नहीं होता है इसका। ओके, तो यहाँ तक आपने ऑन पेज एसईओ कर ली,
प्रैक्टिकली अगर थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो ऑफ पेज एसईओ भी कर लिया आपने। अब बात आते हैं कि आपने कर तो लिया, आपको पता कैसे चले कि आपकी वेबसाइट परफॉर्म कैसे कर रही है सर्च इंजन में। तो इसके लिए गूगल के अपने टूल्स हैं। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल व्यू दिखा देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स में अगर सर्च कंसोल ओपन कर लूँ मैं, गूगल सर्च कंसोल का अगर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, तो गूगल सर्च कंसोल आप जब वेबसाइट इंडेक्स करते हो ना गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में, बैंक का अपना वो सर्च कंसोल है और गूगल का अपना है। तो वो आपको पूरी डेटा देता है वहाँ पे आपके वेबसाइट में क्या क्या एरर आ रहे हैं, आपको फिक्स करनी चाहिए, इंडेक्सिंग के क्या इश्यूज आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट नाउ। ओके ओके, सो ये मेरा एक पर्सनल प्रोजेक्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फेमस बेड टाइम स्टोरीज का, जिसका मैं कीवर्ड जिक्र कर रहा था। तो ये मेरा पर्सनल वेबसाइट है। यहाँ पे ये पूरी परफॉर्मेंस बता रहा है मुझे, गूगल सर्च इंजन में परफॉर्मेंस बता रहा है कि आपकी सर्च इंजन में परफॉर्मेंस कैसी है और आपके पास वेब सर्च क्लिक्स कितने आ रहे हैं परफॉर्मेंस के हवाले से। तो मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की थी अराउंड जून 2020 में। तो ऑन एंड ऑफ काम चलता रहता है जॉब के साथ, तो मैं पर्सनल ब्लॉग भी चलाता हूँ। तो एनीवेज ये परफॉर्मेंस है एंड कवरेज इश्यूज बता रहा है कि आपके 131 वैलिड पेजेस हैं जो कि सर्च इंजन में सही परफॉर्म कर रहे हैं, 2 पेजेस हैं जो एरर के साथ हैं। अगर मैं एरर इन पे इम्प्रूव करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे ओपन रिपोर्ट करूँगा, जाके देखूँगा कि क्या एरर हैं जो मैं फिक्स करूँगा बाद में जाके, फिर यहाँ पे आके गूगल को बता दूँगा मैंने पेजेस फिक्स कर दिए। कोर वेब वाइटल्स, वन ऑफ द मेन रैंकिंग फैक्टर्स इन टुडेज 2021 एरा। अगर आपको वेबसाइट प्रॉपरली बिल्डअप करनी है और रैंक करनी है, तो ये कोर वेब वाइटल आपको बता रहा होता है कि आपकी 24 पुअर यूआरएल्स हैं जो कि मोबाइल में सही नहीं चल रही है। आपको ये फिक्स करनी है ताकि आपकी रैंकिंग में बेटर कर सकूँ। नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप यू डोंट डिजर्व अ रैंकिंग स्पॉट, आपको मैं रैंकिंग नहीं देता। अगर आप करेंगे ये इम्प्रूवमेंट्स तो आप रैंक लेंगे और रैंकिंग ला के आप फिर उसको लिवरेज कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स यहाँ पे बता रहा है, कवरेज बता रहा है, साइट मैप्स आपको इंडेक्स करना पड़ता है जो कि मैंने किया हुआ है और 6 दिसंबर को मैंने किया हुआ था। ठीक है, ये कुड नॉट फैच आ रहा है क्योंकि इस ब्लॉक को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया हुआ है फॉर द टाइम बिंग। और यहाँ पे लिंक्स बताएगा, जो मैं ऑफ पेज की बात कर रहा था, यहाँ पे ऑफ पेज का लिंक बताएगा कि आपको जो है टॉप लिंकिंग वेबसाइट है कौन सी हैं जो आपको यहाँ पे आपका लिंक है। तो रेडिट का आपने नाम सुना होगा, रेडिट पे मैंने लिंक बिल्डिंग की थी, पिंटरेस्ट, pakistantoday.com। और ये आपको वही वो चीज़ भी बताएगा कि आपने अगर pakistantoday.com पे बनाया हुआ है लिंक, तो वो कौन से पेज पे बनाया हुआ है। तो ये बता रहा है कि इन पेजेस पे आपका लिंक है। ये पूरी डेटा है जो आपको हेल्प आउट करता है फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाने में। ठीक है, और इसी तरह जो कीवर्ड है आर्काइव का, स्कूल प्लस का, तो मैंने उनको लिंक बिल्डिंग में किया हुआ है। और यहाँ पे इन अमेरिका, अगर आप google.com फेमस बेड टाइम स्टोरीज, तो यू विल बी फाइंडिंग माय वेबसाइट ऑन नंबर 11। ठीक है, अमेरिका में, अब माय टारगेट ऑडियंस इज अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में ये टॉप 30 फेमस बेड टाइम स्टोरीज फॉर किड्स टू रीड ऑनलाइन ये रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये टूल होता है और इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखना चाहें तो यहाँ पे हम टेक नट्स प्रोजेक्ट में आएंगे। परफॉर्मेंस गूगल एनालिटिक्स टूल्स हेल्प आउट करता है आपको, जो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आ रही है यूजर्स बिहेवियर की, ये आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहा है वो कर क्या रहा है, कहाँ पे उसने क्लिक किया, कितने पेजेस उसने व्यूज़ किए हैं। और करंट मेरे पास अगर देखे जाए तो इन दिस वीक मेरे पास 600 विजिटर्स आए जिन लोगों ने 1000 पेजेस विजिट किए हैं। ठीक है, सेशन ड्यूरेशन और कौन सी कंट्रीज हैं, ट्रैफिक चैनल, गूगल डायरेक्ट, रेफरल, अदर।
तो गूगल से ज़्यादा लोग मेरे पास आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, इंडिया, फिलिपाइन, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। तो ये डेटा आपको फर्दर हेल्प आउट करती है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक आ रहा है तो इट मीन्स आई कैन राइट अ मोर वेल रिसर्च्ड ब्लॉग और कंटेंट ऑन अराउंड दिस इंडस्ट्री जो टॉपिकल है बेड टाइम स्टोरीज से। तो जो फेमस बेड टाइम स्टोरीज हैं, और अगर मुझे कोई और स्टोरीज भी मिलती हैं, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में अगर स्टोरीज हैं, अगर मैं उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके और लिखूँ तो मेरे पास और ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है इसका अपनी वेबसाइट पे। तो ये टूल्स होते हैं एक्विजिशन में, आपको पता चल जाता है कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, चैनल्स क्या हैं। अगर मैं आपको लोकेशन यहाँ पे ऑडियंस की दिखाऊं, डेमोग्राफी हो गई, आई थिंक जियो लोकेशंस, जियोग्राफिकली मेरे पास लोकेशंस तो आ रही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन से शहर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डेटा मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में 178, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, ओहियो, कनेक्टिकट, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, न्यू जर्सी। तो इसी तरह इंडिया में भी होंगे। तो मेरे पास वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट से। तो ये मैंने वेबसाइट जो है ऑन एंड ऑफ अगर मैंने काम किया तो ये 6 महीने में गुड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आई एम रिसीविंग। ओके जी, सो गेट स्टार्टेड विद एसईओ एक्टिविटीज। आपने ऑन पेज एसईओ का पढ़ लिया, ऑफ पेज एसईओ का पढ़ लिया, और मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी बता दिया कि अगर मैंने सुपरफिट को रैंक किया है तो कैसे किया हुआ है, और कौन से कीवर्ड्स मैंने उसमें यूज़ किए हैं, कीवर्ड सर्च के टूल्स मैंने कौन से यूज़ किए। ठीक है, और बेड टाइम, आई थिंक फेमस बेड टाइम स्टोरीज जो मेरा पर्सनल ब्लॉग है वो कैसे मैंने रैंक किया हुआ है। तो ये ऑन पेज ऑफ पेज ऐसे एक्टिविटीज है। आपको अगर इनकेस अगर आपको जॉब मिल जाती है, इंटर्नशिप कहीं भी मिल जाती है, या आप कहीं हायर हो रहे हैं एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, या अगर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कीवर्ड सर्च की मैंने बात की। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट को एज अ क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या मीडियम होना चाहिए उस वेबसाइट का। अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ब्लॉग स्टार्ट में आपको जाहिर सी बात है, अगर आपकी जिस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी, अगर आप वेब डेवलपमेंट में अच्छे हैं तो आप कहेंगे यार पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे होंगे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ लोग होंगे कहीं अगर उनको मसला आ रहा होगा तो मैं अगर यूट्यूब चैनल बना के उनको हेल्प आउट कर दूँ कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, शॉपिफाई कस्टमाइजेशन कैसे होती है। तो इसी तरह आप ब्लॉग फॉर्मेट में भी इस तरह ला सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड फाइज़ला हो गया, पीएचपी इशू कर रहा है तो कैसे रिज़ॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प आउट करके उसके अराउंड आप अगर चाहें तो फिर आप मिनी एक कोर्स बना के जिसको आप काफ़ी अगर आपके विजिटर्स हो गए, ब्रांड अवेयरनेस हो गई, आपकी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ गए, तो मिनी कोर्स बना के आप सेल कर सकते हैं कि लॉयल कस्टमर्स हो गए आपको वो कोर्स बाय कर सकते हैं, या उसको आप लेवरेज कर सकते हैं गूगल एडसेंस से, या आगे जाके अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी हो रही है तो आपको उसको फ्लिप कर सकते हैं, किसी और को सेल आउट कर सकते हैं। तो कंटेंट की आउटलाइन बनानी होती है। कंटेंट जितना अच्छा आपका होगा उतनी आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। तो मैं ईज़ी हैक्स अगर आपको बताता हूँ तो ऑन पेज एसईओ में अगर आप टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, टॉप 10 को आप रिजल्ट को देख लें। अगर टॉप 10 में कोई वो चीज़ कवर नहीं कर रहा जो आपको पता है कि यहाँ पे मैं अगर अपने कंटेंट में कवर कर लूँगा, अगर उस बंदे ने 8,000 कह रहा हूँ 800 वर्ड्स का कंटेंट लिखा होगा, तो आप उसको 1200 वर्ड या 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिख के आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं गूगल में। ऑफ पेज एसईओ फिर आप ऐसा-ऐसा कर सकते हैं। ओके, कहाँ-कहाँ पे बैकलिंक्स बनानी होती हैं। ऑन पेज एसईओ का मैंने बता दिया, और टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन जो आप ऑन पेज करेंगे। ऑफ पेज एसईओ का मैं थोड़े सोर्सेस बता देता हूँ। मीडियम हो गया, जिम्डो हो गया, और ब्लॉग हो गया। फोरम्स हो गए, फोरम्स में अगर आप की रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो डीएशए टुडे हो गया, क्योंकि कराची में डिफेंस हाउस अथॉरिटी का उनका ब्लॉग है अपना, तो वहाँ पे आप जाके रियल एस्टेट के हवाले से बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है और कैसे आप कोई होम सेल आउट कर सकते हैं जल्दी। बिजनेस प्रोफाइल्स, अगर किसी क्लाइंट की कंपनी है लोकली उनका स्टोर है, जैसे डॉर्मेंट मॉल में सुपरफिट का स्टोर है तो उसकी मैंने बिजनेस प्रोफाइल्स बनाए हैं ऑनलाइन भी। सदर में अगर कोई स्टोर होगा, जैसे जैनम मार्केट में कोई एक अच्छा सा स्टोर है, आप उनको बोलते हैं मैं आपके लिए एसईओ कर देता हूँ, तो उनके लिए आप बिजनेस प्रोफाइल्स बनाएंगे ताकि गूगल को पता चले कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है और फेमस है। उस स्टोर को आप ऑनलाइन डिजिटली फेमस कराना चाह रहे हो, जिसके लिए हमें बिजनेस प्रोफाइल्स बनाने पड़ते हैं। क्लासिफाइड का मैंने बता दिया, गेस्ट पोस्ट का भी आइडिया मैंने दे दिया।
कोरा का भी और फिक्सिया जो है इनके फॉरम्स होते हैं, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब बात आती है, ये पूरी चीज़ तो हमने कर ली, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लिया, एसईओ भी कर ली। अब हम देखते हैं कि एसईओ एज ए करियर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डाइव इन करूँ एसईओ करियर में। तो अभी मैंने पर्सनली अपना एक रिसर्च की हुई थी लिंक्डइन पे भी और ज़्यादा मार्केट में भी। पाकिस्तान में अगर आप रोज़ी डॉट पी के पे जाएँ, इंडीड में जाएँ या लिंक्डइन पे जाएँ, तो काफ़ी लोग एसईओ की जॉब्स अभी पाकिस्तान में भी लोग दे रहे हैं और वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग जो है अगर डिजिटल मार्केटिंग का ना टर्म सुनते हैं, तो वो कहते हैं यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, बट दे डोंट रिसर्च मोर। उनको रिसर्च करनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। उस एक फ़ील्ड में आप स्पेसिफिकली अपने आप को जो है ना वन मैन शो कर दें या वन मैन आर्मी कर दें। जैसे कि अगर वेब डेवलपमेंट है, अब वेब डेवलपमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वेब डेवलपमेंट में भी ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी चीज़ें हो गई, वर्डप्रेस डेवलपमेंट हो गई, रिएक्ट डेवलपमेंट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो आप उसमें एक चीज़ में आते हो कि भई आई एम स्पेशलिस्ट, फुल फ्रंट एंड डेवलपर स्पेशलिस्ट हैं आप, बैक एंड डेवलपर स्पेशलिस्ट हैं आप। फिर आपको सारी चीज़ें आ जाएँ, यू आर बीइंग कॉल्ड देन फुल स्टैक डेवलपर। आपको सारी चीज़ें आती हैं फुल स्टैक डेवलपर में। ठीक है? तो इसी तरह भी आप डिजिटल मार्केटिंग में भी इस तरह कर सकते हैं। आप एसईओ से स्टार्ट लें। एसईओ इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री लाइक अ डेटा साइंस। डेटा साइंस में आपको जो आर चाहिए होता है, लैंग्वेज प्लेटफ़ॉर्म, टेबल्यू एंड पाइथन। एसईओ करियर में अगर आप एसईओ पहले सीख लेते हैं, तो जो आगे जाके डेटा साइंस में मर्ज हो रही है, तो एसईओ इज़ ऑल अबाउट डेटा, तो वो आपको फर्दर हेल्प कर सकती है। तो आप आगे जाके पाइथन एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डब्ल्यू एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स एसईओ के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर आपको एसईओ आ गई तो यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो दूसरा ये है, जॉब्स अगर ढूँढना चाहें तो आप जॉब्स मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि कैसे आप वो कर सकते हैं। अगर आप एसईओ सीख लेते हैं तो आप में पोटेंशियल है, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरनेशनली अब यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रिमोटली भी काफ़ी लोग हायर कर रहे हैं, जो कि मैंने पर्सनली घर पे बैठ के काम किया। मेरे पास 2-3 ऑफ़र्स अभी भी आई हैं, जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की। तो काफ़ी लोग एसईओ के बंदे ढूँढ रहे हैं, एसईओ के लोग ढूँढ रहे हैं। दूसरा इसका फैक्टर ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और फ्रीलांसिंग सर्विसेज़। आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ के अराउंड। अगर मैं अपना रिसर्च का बताऊँ और अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो मेरा एक निश है, काफ़ी लोग पाकिस्तान टूर का और नारंग कागान का टूर पैकेजेज़, हज उम्रा पैकेजेज़ का ज़्यादा वो सर्चेज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? तो मैं ये सोच रहा था यार मैं इस पे वेबसाइट बना सकता हूँ और फिर मैं जाके इस वेबसाइट को रैंक करा के फिर मैं ट्रैवल एजेंसी से जाके डील कर सकता हूँ कि मेरे पास लोग आ रहे हैं। मैं आपकी वेबसाइट का आपकी वेबसाइट का या आपकी एडवर्टाइज़मेंट अपनी वेबसाइट पे करूँगा। अगर लोग आपके पैकेज खरीदेंगे तो आप मुझे कमीशन दे देना। एंड सपोज़ अगर कोई 30,000 का पैकेज खरीद रहा है और आपको इन रिटर्न 2,000-3,000 पर कस्टमर, अगर आप कीवर्ड सर्च करेंगे उम्रा पैकेजेज़ के या पाकिस्तान टूर के, तो काफ़ी सर्चेज़ होंगी। तो इसके अराउंड आप बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें आप बना लें, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊँगा मार्केट में। काफ़ी लोग आ रहे हैं, फाइंड माय ट्रैवल आ गया है, जिसको इन्वेस्टमेंट मिली है, मिडल ईस्ट कंपनी ने दी हुई है। तो अगर आप भी मार्केट का पहले फ़ायदा उठाना चाहें तो आप आ सकते हैं, क्योंकि दिस मार्केट इज़ स्टिल अनटैप्ड। और अगर आप चाहें तो एसईओ सीख के आप fiverr.com पे, फ्रीलांसर, अपवर्क पे आप सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं अपनी। जैसे कि आपने अगर आप कीवर्ड सर्च सीख लिया तो आप उनको बोलेंगे कि मैं आपके लिए कीवर्ड सर्च कर लूँगा और या आपकी एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन कर लूँगा। गिग्स बनाते हैं जैसे फाइवर में, तो फाइवर में आप 10 ऐसे गिग्स बना लेंगे, ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन अलग कर ली, ऑफ पेज एसईओ अलग कर ली, कीवर्ड सर्च अलग कर ली, जिस गिग पे ऑर्डर आया आप वो चीज़ सर्विस दे देंगे। अगर पाकिस्तान टूर का हम कीवर्ड सर्च करें, कौन-सा टूल था, आई थिंक सैमरश। चलें यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में कर लेते हैं। पाकिस्तान टूर।
1000 से 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान टूर पैकेजेस, मतलब पैकेजेस लोग ढूंढ रहे हैं, तो इट मीन्स यू कैन डाइव इन। आप कह सकते हैं इस ब्लॉग पे आप पैकेजेस के अराउंड इट एक वेबसाइट बना लें कि नारंगा का ये पैकेज है, आज़ाद कश्मीर का ये पैकेज है, और फिर आप जितनी अथॉरिटी बढ़ाएंगे, जितने टॉपिक्स आप लिखते जाएंगे, आपकी वेबसाइट टॉप 10 में आती जाएगी एसईओ के हवाले से, क्योंकि आप एजुकेट कर रहे हैं बोर्ड को कि मेरी वेबसाइट पाकिस्तान टूर पैकेजेस के हवाले से है। ओके, सो लिंक्डइन पे चलते हैं। लिंक्डइन पे चल के हम आते हैं यहाँ पे, rosie.pk भी मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड आई थिंक indeed.com.pk। SEO इन कराची। ओके, तो एज यू कैन सी करंटली this firm is looking to hire a SEO person जिसको लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, मतलब एक तो हो गया आपको SEO आती है, बट ये चाह रहे हैं कि आप लिंक बिल्डिंग में स्पेशलिस्ट हों, मतलब ये अलग, ऑफ पेज की फील्ड अलग हो गई। अगर आप ऑन पेज के हैं तो ऑन पेज की फील्ड अलग हो गई। तो ये आगे जाके जैसे ही मतलब काम बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी लोगों को अलग से रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं कि भाई ऑन पेज का अलग से बंदा रख लो, लिंक बिल्डिंग का अलग से रख लो, या कोई उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो कहते हैं कि एसईओ का पर्सन हायर कर लेते हैं जिसको एसईओ और लिंक ऑफ पेज एसईओ दोनों आती है, ऑन पेज एसईओ। ओके, मैजेंटो डेवलपर में अगर कोई उनको चाहिए तो मैजेंटो डेवलपर एडोबी वालों का है मैजेंटो, तो उनको एसईओ का लिए कह रहे हैं कि उनके पास थोड़ी बहुत एसईओ की नॉलेज होनी चाहिए। तो इट मींस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन डेवलपमेंट, यू मस्ट कंसिडर टू हैव एन एजुकेशन इन प्रैक्टिस ऑफ एसईओ, जूनियर एसईओ। तो ये सारी जॉब्स आ रही हैं यहाँ पे कराची में, अभी भी हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जूनियर एसईओ, एसईओ इंटर्नशिप भी हैं। rosie.pk पे 58 जॉब्स हैं। मैं इसको कर देता हूँ कराची, एंड SEO एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट सर्च। SEO एग्जीक्यूटिव की 4 फरवरी को पोस्ट हुई है, एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स। indeed.com हो गया, लिंक्डइन। नाउ द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट लिंक्डइन इज, आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो अभी से आप अपना प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर लें, क्योंकि लिंक्डइन पे ये है कि अगर आप एक अच्छी खासी इंगेजमेंट करते हैं तो काफ़ी लोग, बिजनेस पर्सन जो होते हैं, वो इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई अगर हमें अच्छा सा टैलेंट अगर दिख जाता है, तो वो खुद ही आपसे आके कांटेक्ट करते हैं। अगर आपकी सर्कल में, उसमें अगर एसईओ वाले सर्कल में जा रहे हैं तो एसईओ वाले सर्कल की बात, कोई भी अगर डेवलपमेंट फील्ड ले लें, मैजेंटो डेवलपर हो गया, शॉपिफाई डेवलपर हो गया, वट एवर यू फील्ड यू चूज, डेटा साइंस की हो गई, डेटा साइंस के लोग बाहर बहुत कम मिल रहे हैं लोगों को, तो वो यहाँ पे भी आउटसोर्स कर रहे हैं कि हमें अगर यहाँ पे कोई मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ नोटिफिकेशंस में, मेरे पास नोटिफिकेशंस आती रहती है, मैंने नोटिफिकेशंस ऑन की हुई है। तो पाकिस्तान में अगर देख लें, मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है 13 आवर्स अगो, ये 16 न्यू जॉब्स पोस्टेड रिलेटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी इस्लामाबाद में ये कंपनी है जो एसईओ का कैंडिडेट ढूंढ रही हैं। देन वी हैव एसईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेस्ड, ये डिजिटल मार्केटिंग में पर्सन शुड हैव नॉलेज एसईओ और एएसओ इफ यू डोंट नो अबाउट एप्लीकेशन, आई थिंक एप्लीकेशन सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ये जो गूगल एप्स की, प्ले स्टोर की एप्स होती हैं, iOS एप्स होती हैं, वो उनको उनकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम होती है। ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे, और मैं अगर अगर आप इनकी अप्लाई देखें ना, 2 एप्लीकेंट्स, मतलब लिंक्डइन पे इतनी काफ़ी पाकिस्तान में लोग हैं, मतलब 2 एप्लीकेंट्स ने जो है ना 1 दिन में अप्लाई किया हुआ है। ऐसे अगर आप कोई डेवलपर की जॉब देख लें तो काफ़ी लोग ने अप्लाई किया होगा, या कंटेंट राइटर की देख लें। अब मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, तो आपको जो
मैं बता रहा हूँ ये कि आपको इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में क्यों आना चाहिए, करियर चूज क्यों करना चाहिए, वो इस वजह से वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें ना, एसईओ जॉब्स वर्ल्ड वाइड लिंक्डइन में जाके, विक्स का जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, विक्स वाले खुद ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें एसईओ का बंदा चाहिए, एसईओ स्पेशलिस्ट, दे आर लुकिंग फॉर एसईओ स्पेशलिस्ट। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतनी बड़ी दुनिया है, काफ़ी लोग हैं, अगर 6 एप्लीकेंट्स सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं और ये प्रमोट कर रहे हैं। पोर्टुगल में 60 एप्लीकेंट्स हो गए, मतलब पोर्टुगल वालों में इतने एसईओ के बंदे आ गए हैं जो पोर्टुगल में कर सकते हैं। एसईओ कंसल्टेंट यूके में बिल्कुल नहीं है। ये मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, एवरी 2 डेज 3 डेज ये पोस्ट करते रहते हैं, पर उनके पास कोई अप्लाई करने वाला नहीं होता। एक एक पर्सन आ गया अप्लाई करने वाला, अगर रिलेवेंट ना हुआ तो फिर दोबारा जॉब पोस्ट करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में 7 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं अपनी, मतलब ब्रॉडर थोड़ा सोचें कि अगर आप पाकिस्तान में ठीक है, अगर आपको ठीक है जॉब नहीं मिल रही, तो आप इन केस अगर बाहर मूव कर रहे हैं तो आपको ऐसी अगर आ रही है तो यू कैन इमेजिन कि आपको वहाँ पे आप ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिशन्स को बीट कर चुके हैं, तो आपको वो डिजर्विंग कैंडिडेट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी 13 एप्लीकेंट्स हैं, 1 एप्लीकेंट एंड मोर देन 7,000 जॉब्स आर पोस्टेड इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड अगर मैं पास्ट मंथ की बात करूं, तो पास्ट मंथ में मतलब पूरे एक महीने में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने, कंपनीज ने, रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने जॉब्स पोस्ट की। तो यू कैन सी के कितना वो है। इसी तरह डेटा साइंस है, डेटा साइंस भी मतलब इमर्जिंग फील्ड है। तो अगर आप डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं या डेटा साइंस का अगर आपका करियर का फोकस है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप एसईओ को भी जो है ना मर्ज कर लें डेटा साइंस के साथ। डेटा साइंस इज अ वास्ट फील्ड, वो मतलब एक अलग ही चीज़ है। तो एसईओ स्पेशलिस्ट भी अगर आप करना चाहें, क्योंकि दिस मार्केट इज स्टिल अनटैप्ड। तो अगर अनटैप्ड मार्केट है, क्यों ना पाकिस्तान के लोग, टैलेंट इतना भरा पड़ा है कि वो एसईओ स्पेशलिस्ट बनने और मुख्तलिफ वर्ड्स में इवन रिमोटली देखें। अगर आप समझते हैं कि ये कंपनी, अगर यहाँ पे 4 लोग हैं, सपोज अगर 4 लोगों ने अप्लाई किया और 4 लोग ही डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, सेंड एन ईमेल करके या मैसेज करके कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं। कवर लेटर में आप बताएंगे कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें की हुई हैं एंड आई थिंक आई कैन हेल्प यू इन ग्रोइंग योर कंपनी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी पड़ती हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया देख लें, और इनकी आप एसईओ की अगर सैलरी की बात की जाए, तो स्टार्टिंग एसईओ की ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके मार्केट की, यूके की अगर देखी जाए तो 25 से 35 तक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होता है उनका पर एनल। ठीक है, एनुअल होता है। और दूसरा ये हो गया नेचर इंटेलिजेंस का, अगर देख लें तो 70 के 80 के बता रहा है एसईओ स्पेशलिस्ट का, 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस। तो यू कैन इमेजिन अगर आपको पर एनम अगर ये चीज़ मिल जाए, जॉब मिल जाए यहाँ पे, तो यू कैन अर्न ग्रेट अमाउंट इन दिस फील्ड ओनली। जो कि वही चीज़ें बताएगा कि आपको ऑन पेज ऐसी आनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च अच्छी आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताई हैं अभी। ऑन साइट ऑन पेज एसईओ, ऑफ साइट ऑफ पेज एसईओ, डेवलप एसईओ कैंपेन, कन्वर्जन रेट अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन हो गई। प्लस पॉइंट है कि आपके पास एचटीएमएल सीएसएस की नॉलेज है, गूगल एनालिटिक्स का और सर्च कंसोल का मैंने आपको बता दिया। वही टूल्स बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसने जो है अपना, जैस्मिन ने नंबर भी दे दिया है कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहा है कि दे कैन आस्क मी एंड दे कैन स्केड्यूल एन इंटरव्यू। तो ये चीज़ है। और एक और बात है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो ये आप जाके लिंक्डइन में थोड़ा रिसर्च कर लें और करियर एसईओ, अगर एसईओ करियर पाथ, ठीक है 7, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम।
आई थिंक नॉट रिलेवेंट, ये रिलेवेंट नहीं है। ओके, अगर आप यहाँ पे इस इमेज में देखें, ये करियर ग्रोथ बता रहा है। आपने एसईओ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के हिसाब से ज्वाइन किया, फिर जूनियर, फिर सीनियर, फिर एनालिस्ट, और फिर लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन यू कैन गो ऑन एसईओ कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। और काफ़ी लोग ऐसा होता है कि एसईओ डायरेक्टर भी ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपके पास 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन बिकम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन एसईओ, एसईओ डायरेक्टर, हेड ऑफ एसईओ। इस तरह मतलब डिजिटल मार्केटिंग तो ठीक है, हो गया बंदा, लेकिन एसईओ एक अलग सी फील्ड जब बनती जा रही है ना अलग से, तो एसईओ एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर एसईओ मैनेजर हो गया, फिर हेड ऑफ एसईओ हो गया, फिर हेड ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, असिस्टेंट देन एसईओ डायरेक्टर हो गया। तो ये मतलब इतना बूमिंग फील्ड है, आप करियर पाथ चूज करते जा सकते हैं इसमें। ओके, लर्निंग रिसोर्सेज, अगर आप एसईओ सीखना चाह रहे हैं और प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब, जो कि अगर आप कोई कोर्स एनरोल नहीं कर रहे किसी इंस्टीट्यूट में जाके ऑनलाइन, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अब्दुल वली का एक एसईओ कोर्स है जो कि मैंने सीखा था वहाँ से 2 साल 3 साल पहले। कोर्स आपको थोड़ा आउटडेटेड लगेगा, लेकिन आउटडेटेड नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं, थोड़ी 2 चीज़ें बस चेंज हुई होंगी। तो वो चीज़ें, ये बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सिखाते हैं। अलीम इकबाल हैं, उन लोगों ने लिंक बिल्डिंग और एसईओ पे ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है, वहाँ पे आप सीखते हैं। हिशाम सरवर का आपने नाम सुना होगा, वो मेरे ख्याल से उन लोगों ने एसईओ की अगर प्लेलिस्ट बनी होगी यूट्यूब पे तो वो आप जाके देख लें। और बेसिक स्टार्ट अगर लेना है तो दिस इज़ अ गुड गाइड टू गो, ताकि वो मतलब बिगिनर लेवल पे आपको पता चले कि एसईओ होती क्या है। ये आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं, तो अगर आप ये कंप्लीट कर लें, एसईओ बेसिक्स हो गया, सर्च इंजिन्स हो गया, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, बैकलिंक्स एंड एसईओ टेस्ट सर्टिफिकेट, जब ये मतलब अराउंड मेरे ख्याल से 1 घंटे का कोर्स है। पढ़ के आपको सिर्फ करना है, फिर आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद दे विल बी गिविंग अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये हो गया, मोज हो गया, एंड फाइनली आई थिंक थैंक यू फॉर लिसनिंग। एनी क्वेश्चंस यू गाइस हैव? जी, थैंक यू अब्दुल समद साहब, इट वाज एन इंटरेस्टिंग अब्दुल सेशन। समी काइंडली आप लोगों को कोई जी अब्दुल समी साहब, जी। अगर आप लोगों को कोई ऐसे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप सर से कर लें, अभी ये आपको बता दें। Hello, am I audible? या यू आर। Yeah. So I just need to ask कि in case मुझे जैसे कोई वेबसाइट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो वो कोई मेरे न्यूज़लेटर के लिए या मेरी ईमेल्स के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मैंने उनको ये मेरी वेबसाइट एक्सेस करने से पहले उन पे ये मैंने कंपल्शन लगा दिया है, तो जो आपकी सर्च इंजन की जो क्रॉलिंग स्टेट होती है, मैंने ये सुना है कि उस क्रॉलिंग स्टेट में फिर मेरी वेबसाइट जज ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि फिर जो गूगल का या फिर जो बिंग का जो एसईओ है ये मेरे उस वेबसाइट को वही नहीं कर पाता, रिडेक्ट ही नहीं करता अपने क्रॉलिंग स्टेट में। ओके, तो व्हाट प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग इन योर वेबसाइट? कौन सा सीएमएस बना हुआ है? हेलो जी। सीएमएस कौन सा यूज कर रहे हैं आपका? वर्डप्रेस? जी ओके, तो आपको रोबोट टेक्स्ट का एडिट करना होगा, इफ यू नो अबाउट htaccess, उसमें जाके या कोई प्लगइन आप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे वो एडिट करके आप बता दें कि ये वेबसाइट मुझे लाइव करनी है और लॉन्च करनी है। और न्यूज़लेटर का आप क्या पूछ रहे थे? कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? ना, I'm just asking मैं अगर रोबोट टेक्स्ट में मैं इस चीज को मेंशन कर दूं कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि लेजिटिमेट जो यूजर्स हैं ना, मैं जो चाह रहा हूँ कि जो भी लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट को मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं उनको फिर जो भी मेरे न्यूज़लेटर्स आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मैं उनको वो
ईमेल कर सकूं, इनको चीजें भेज सकूं। तो अब एज फार एज आई हैव हर्ड, आई डोंट नो मुझे सही पता है या गलत, लेकिन ये कि अगर मैं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ अपनी वेबसाइट पे कि लोग जो आ रहे हैं वो अपनी मुझे ईमेल प्रोवाइड करें ताकि मैं उनको न्यूज़लेटर्स वगैरह भेज सकूं, तो जो गूगल का जो एसईओ है ये मुझे क्रॉलिंग स्टेट में जज आइडेंटिफाई ही नहीं करता, क्योंकि मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ये जैसे लॉगिन, कोई मैंने लॉगिन लगा दिया इस तरीके की कोई चीज, तो मैं उसमें आइडेंटिफाई नहीं होता। इज इट करेक्ट और नॉट? आई एम जस्ट आस्किंग दिस। Login and thank you pages are recommended to not index in Google. और जो आप दूसरा बता रहे हैं, जितना मैं आपके क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि आप चाह रहे हैं कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं गूगल से, उनको मैं इतना वो इनकरेज करूँ कि वो अपनी ईमेल ड्रॉप आउट करें न्यूज़लेटर, ताकि आप उनको ईमेल मार्केटिंग के जरिए वो चीज़ें आप सेल आउट कर सकें, क्रेडिट सेल आउट कर सकें। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? यस एग्जैक्टली। तो आपको जो न्यूज़लेटर है वो रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आप रोबोट टैक्स से अलाउ भी कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो इंटेंट है ना, यहाँ पे मैंने ऑन पेज एसईओ की बात की थी। तो व्हाट यू नीड टू डू, सपोज इफ एनीबॉडी इज ट्राइंग टू सेल नेटफ्लिक्स अकाउंट इन पाकिस्तान, राइट? ठीक है, तो नेटफ्लिक्स का अगर कोई अकाउंट सेल है तो वो उस वेबसाइट को, उस पेज को क्या करेगा, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करेगा कि भाई उसने टाइटल टैग में नेटफ्लिक्स का यूज कर लिया और मेटा डिस्क्रिप्शन नेटफ्लिक्स का यूज कर लिया और कंटेंट के अराउंड सब चीजें बता दी कि मैं जो है नेटफ्लिक्स अकाउंट से सेल कर रहा हूँ, जो कि आप यूज कर सकते हैं और आप इतने में मुझसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप या तो कस्टमर को डायरेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे कि यहाँ से आप कर लेंगे, या पे आप न्यूज़लेटर देने के मुझसे कांटेक्ट करें। वंस यू मेक अ पेमेंट और वाया इजी पैसा और जेएस कैश और बैंक, आई विल बी सेंडिंग यू एन ईमेल विद क्रेडेंशियल्स। तो इस तरह से चलती है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो यू नीड टू जस्ट सर्च इंटेंट की जो मैंने बात की थी ना, सो इंटेंट जरूरी है कीवर्ड रिसर्च का। तो कोई अगर प्रोडक्ट है, जैसे शूज का मैंने अक्सर जिक्र किया, शूज ऑनलाइन शॉपिंग, तो मेरा इंटेंट यही होगा कि मैं उसी पेज की ऑप्टिमाइजेशन करके कीवर्ड कंटेंट सारी चीजें देके देन सीटी जो कॉल टू एक्शन होगा मैं वही दूंगा, बाय नाउ का प्रोडक्ट देके फिर मैं उसको प्रोडक्ट बाय करा दूंगा। ओके। ओके, तो एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपके जैसे डायनामिक, जैसे आपने कहा था कि पेजेस जनरेट होते हैं तो उनको जो ना गूगल मतलब के रैंक नहीं करवा देता, तो सर इससे तो मतलब कि हम एक हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग से एसईओ करके उसके लिए अलग से पेजेस बनाने पड़ेंगे, स्टैटिक पेजेस? हाँ, आपको अलग से पेजेस करना पड़ेंगे, क्योंकि डायनामिकली आप अगर चाह रहे हैं कि वो चीज़ करना, तो डायनामिकली जितना मुझे आइडिया है कि आप एक स्पेसिफिक कमांड दे देते हो कि भाई ये पेजेस में चीज़ें होनी चाहिए और डायनामिकली सब पे पब्लिश हो जाए। ठीक है, स्टैटिकली ये होता है कि आपका अपना एक पेज होता है जो स्पेसिफिकली उस टॉपिक के हवाले से होता है। सपोज फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन का पेज है, ठीक है, और अगर मुझे एडमिशन का पेज कोई रैंक कराना है वहाँ पे गूगल में, तो टॉप यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो टॉप यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर साइंस डिग्री इन कराची, तो मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी की उस हिसाब से पेजेस पे वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना, तो उसको अलग से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। असल में अगर मेरी ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट है, उसके मुझे प्रोडक्ट जैसे रैंक कराने हैं, तो क्या करता हूँ कि जैसे डेटाबेस बनाता जाता हूँ, तो प्रोडक्ट के साथ उसके टैग्स, मेटा टैग्स और उसकी जो ना कंटेंट जो होता है, जैसे डिस्क्रिप्शन हो गई या मिनी डिस्क्रिप्शन हो गई, मैंने वो सब चीजें जो ना वहाँ पे एस कॉलम ले लिया है डेटाबेस में। और फिर जब मेरा कोई मतलब प्रोडक्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो ना वो सारा पेज क्रिएट हो रहा है और उसी के हिसाब से हाँ, आई गेट योर पॉइंट। मतलब वो आप कमांड दे देंगे कि इस प्रोडक्ट का ये नाम है और ये नाम टाइटल टैग में और मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, जी। लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि यूनिकनेस इज अ की। अगर आप गूगल करें फर्दर, तो गूगल चाहता है कि आपका कंटेंट, आपका टाइटल टैग जितना यूनिक होगा, यहाँ पे आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं। आप डुप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन एक डिफॉल्ट लिख ली, डिफॉल्ट बाय दिस प्रोडक्ट एटसेट्रा एंड 160 कैरेक्टर्स, ठीक है, वही चीज रिपीट हो रही है। उसमें सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, आपका कीवर्ड चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट नेम चेंज हो रहा है, बाकी वही टाइटल टैग है, बाकी वही वर्ड्स हैं। फिर प्रोडक्ट कीवर्ड हुआ, वो चेंज हुआ, फिर टाइटल में मेटा डिस्क्रिप्शन वो कीवर्ड चेंज हुआ। तो इसी तो वजह से सर इसी तो वजह से यही सारी खाली जो एंटरप्राइज, या कंटिन्यू।
क्या इसको भी सर रैंक करेगा गूगल, या मतलब नहीं, कि गूगल इसको प्रेफरेंस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डायनामिकली ये चीज़ है ना, तो गूगल मैन्युअली जो काम हुआ होता है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना, इसी तरह दूसरी कंपनी के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे, वही ये चीज़ कर रहे होंगे। तो गूगल ने कहा ये चीज़ हो रही है, तो डायनामिकली तो काफ़ी सारे पेजेज़ एक ही कमांड के साथ बनते जा रहे हैं, तो मैन्युअली जी तो सर। काम नहीं हो रहा। तो मैन्युअली एफर्ट इनपुट करने के लिए काफ़ी एंटरप्राइज़ कंपनीज़ जब गूगल की गाइडलाइंस देखती हैं, उनको फिर एसईओ का रिसोर्स चाहिए होता है। दैट्स व्हाई आप अगर लिंक्डइन में जाएँ तो काफ़ी कंपनीज़, फाइवर हो गई, इवन फाइवर आर लुकिंग फॉर एसईओ टू हेल्प देम रैंक देयर वेबसाइट बेटर इन गूगल। तो सर इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि मतलब अगर यार हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हर किसी को रैंक कराना है, तो स्टैटिक कितने पेजेस बनाएंगे सर? हमारे पास अगर आपका 10,000। डिपेंड करता है ना, अगर आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है तो जितनी, अगर 100 पे 100 प्रोडक्ट्स हैं तो आप अकेले तो नहीं होंगे टाइटल टैग लिखने वाले। आप अगर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन आप दूसरे नहीं नहीं डिपार्टमेंट को कर देंगे। सर, अगर सर एक इशू बन जाता है ना कि अगर सर दराज के पास 10,000 जो है ना मतलब कि उसके प्रोडक्ट्स हैं, तो 10,000 के लिए वो अलग एक एक पेज बना के वो। जितना वो उनके पास एसईओज होते हैं वो करते हैं। और अगर आप देखें तो 10,000 प्रोडक्ट से ज़्यादातर उनके जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं वही कर रहे होते हैं जो उनमें यूनिक्स आती है। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि पाकिस्तान में अगर कोई और वेबसाइट दराज़ को वो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर रही, टेलीमार्ट ने अगर वो प्रोडक्ट प्लेस नहीं किया हुआ, तो दराज़ की वेबसाइट आ जाती है, चाहे वो डायनामिकली हो। अच्छा, सही सर, हाँ, ठीक। जब जब गूगल को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना यूनिकनेस वाली, तब फिर वो गूगल चाहता है कि ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। लेकिन जब वही 10 कॉम्पिटिशन अगर देखता है, कॉम्पिटिशन में अगर 20-30 वेबसाइट अगर हैं, तो दे विल नॉट बी गिविंग अ प्रेफरेंस टू डायनामिकल्स वेबसाइट जो कि यूनिकनेस नहीं ला रही होंगी कंटेंट में या टाइटल टैग में या मेटा डिस्क्रिप्शन में। ओके, एनी अदर? ओके, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन है अगर किसी को तो पूछ लें मुझसे। ठीक है अब्दुल समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज अ वेरी वंडरफुल एंड नाइस सेशन। ओके, ग्रेट। हम ये Anyways, I चाहेंगे। think that there are 12% still active. So I would like to share one more thing कि what SEO के अगर आप चाहें SEO फील्ड अगर, तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो what you guys can do and such. Hello, can you hear me? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो लाहौर का एक लड़का था, 2 साल पहले की बात है आई थिंक। He started an SEO and website as a, मतलब जैसे होता है कि यार चलो यार मैं देख लेता हूँ, काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो इफ यू गाइस कैन गो एंड यूट्यूब, अगर आप जाएं तो यूट्यूब पे जाके आप क्या करेंगे, लुकमान के नाम से आप सर्च कर लें। तो ये इंटरव्यू ज़रूर देख लीजिएगा। इस पे ये है कि ये लुकमान है और इसने वेबसाइट बनाई थी 10bees.com के नाम। तो दिस वेबसाइट गॉट सेल अराउंड मोर देन, मतलब 2.5 करोड़ की वेबसाइट की। एक साल उसने मेहनत की और फिर उसने रैंक की, फिर उसने वेबसाइट को सेल कर दिया। और इसने जो वेबसाइट बनाई थी 10bees.com, अगर आप वेबसाइट देख लें 10bees, वो ये इसने रिव्यूज पे बनाई थी कि गेमिंग टॉप 10 एंड्रॉयड स्मार्ट वॉचेस हो गई, बेस्ट कंट्रोलर पीसीज हो गए, स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन हो गई। तो ये वेबसाइट इसने 1 साल बाद सेल कर दी थी। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, इसी तरह कोई ऐसी टॉपिक देखें और 1 साल उस पर मेहनत करें, कंटेंट लिखें, ऑन पेज एसईओ करें, ऑफ पेज एसईओ करें। अगर कंटेंट पे ही आप ऑन पेज एसईओ करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अर्न एंड सेल्फ एम्प्लॉयड योरसेल्फ एज वेल, ग्रेट अमाउंट। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि आप देख लें।
तो ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा और वेबसाइट भी विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन सो फार। जी ठीक है अब्दुल समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स फॉर कमिंग एंड providing us with such an informational session and You're welcome. चाहूंगा कि जी बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि आपको दोबारा से एंगेज किया जाए एक अनदर सेशन के लिए, जो Yeah, sure. जी अगर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसका पार्ट 2 हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगर स्टूडेंट्स इवन यहाँ पे अगर 10 से 15 स्टूडेंट्स भी अगर सीरियस हैं तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गो फॉर सेशन 2। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप ठीक है, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देन जो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ की थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत हुई थी, तो मैं इसको ऑन पेज एसईओ की फिर सेशन 2 में हम प्रैक्टिकली कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक इसका जो है वो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग ओके, द। ये रिकॉर्डिंग आपका लिंक यूट्यूब पे कहाँ पे शेयर करेंगे? जी तो जी प्रोवाइड यूट्यूब, मी ईमेल भी कर दें मुझे। जी हाँ मैं आपको ईमेल कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज।